because they are the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. افهموا هذا جيدا. Make sure this is clear in your mind. You think that they are your friends? No, they're the enemies of Allah. So if they're the enemies of Allah, how are they your close friends? I want our children to understand this well. The non-Muslims are the enemies of Allah. Therefore, they are your enemies. کہ اگر تمہارا سگا بھائی، تمہارا سگا باپ، تمہارا سگا بیٹا بھی اگر جو ہے اسلام کو نہیں مانتا، وہ کفر کو ایمان کے اوپر رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی تعلق نہیں رکھنا. قرآن کی نظر میں ظالم کون ہے؟ قرآن کی نظر میں ظالم کافر ہیں. جو کافر ہیں وہی قرآن کی نظر میں جو ہے وہی قرآن کی نظر میں ظالم ہیں. کئی مولانا جو ہیں لوگوں کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں اور کئی بار اسلام کو غلط چھوی پیش کرنے کا کام کرتے ہیں. کافر کا جو استعمال کیا نا، کافر کا میننگ میڈم انہوں نے کافر کا میننگ نہیں بتایا. کافر اصل میں کہا کس کے لیے گیا ہے، یہ اس کا سچوالا صاحب آپ توڑ مروڑ کر، حسین صاحب آپ کیا آروپ لگا رہے ہیں؟ آپ توڑ مروڑ کر آیتیں پیش کر رہے ہیں. اپنے جو یہودی ہیں اور جو عیسائی ہیں ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھو. یہ بار بار قرآن جو ہے اس کو ریپیٹ کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کوئی ایک آیت پیش کریں جس میں یہود و نصارہ یا مشرکوں یا ہندوؤں یا کافروں سے دوستی کی بات کی گئی. ایک آیت بتاؤ، ایک آیت پورے قرآن میں یہ بتاؤ کہ جس میں کافروں کے ساتھ پیار کی بات کی گئی ہے. جے ہند دوستو، کیا ہندو اور غیر مسلمان اسلام کے دشمن ہیں؟ کیا کافر جو ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں؟ کون لوگ ہیں جو کافر کی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کن لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں؟ آج اس ویڈیو میں جانیں گے. ڈیبیٹ ہو رہی ہے سچ والا جی کے ساتھ. تو دوستو سچ والا جی کے چینل کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن پہ دیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں پہلے یہ ویڈیو کہ اس پوری ڈسکشن اور ڈیبیٹ سے کیا کنکلوژن نکل کے آتا ہے. ویڈیو لگاتا ہوں میں اسکرین پر. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے. ہمارے خاص شو کیا کہتا ہے اسلام میں، اور آج ہم سوال اٹھائیں گے کیا غیر مسلمان اللہ کے دشمن ہوتے ہیں؟ کیا ہندو، سکھ، عیسائی، جین دھرم کے لوگ اللہ کے دشمن ہیں اور کیا ان کا ناش ہونا چاہیے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ایک مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، اور اسی پر ہم چرچا کریں گے کہ کیا اسلام یہ سیکھ دیتا ہے، کیا کہیں قرآن حدیثوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دوسرے دھرم کے لوگ جو ہیں اللہ کے دشمن ہیں اور ان کا ناش کرنا، ان کا نشٹ کرنا ایک سچے مسلمان کا یہ فرض ہوتا ہے. So what, they're the friends of Allah, that's why he curses them? No. He only curses them because they are the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. افهموا هذا جيدا. Make sure this is clear in your mind. You think that they are your friends? No, they're the enemies of Allah. So if they're the enemies of Allah, how are they your close friends? I want our children to understand this well. The non-Muslims are the enemies of Allah. Therefore, they are your enemies. Some of them don't even believe that Allah exists. You want somebody like that to be a close friend of yours? یعنی جو نان مسلم ہیں، اس بائٹ کا جو یہ آپ نے سنا ہے، اس بیان کا ہندی ترجمہ میں بتا دیتی ہوں کہ جو غیر اسلامک ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، وہ اللہ میں یقین نہیں رکھتے، اسی لیے تم ان کے نہ تو دوست ہو سکتے ہیں اور ان کو نشٹ کرنا، ان کو ختم کرنا تمہارا کام ہے. حسین صاحب، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کیا سب یہ اللہ کے دشمن نظر آتے ہیں آپ کو؟ کیا اسلام یہی کہتا ہے؟ دیکھیے میں جس طرح سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے میں اس کی کٹھور نندا کرتا ہوں، اور اسلام مذہب میں بالکل بھی اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یا پھر یہ جانتے نہیں ہیں. میں آپ کو ان کا پریچے دے دوں. کینیڈا کی امام ہے شیخ یونس کہترادہ نام ہے جی، اور وہ کوئی بھی ہو، کتنے بڑے امام ہو، جب تک پریکٹیکلی جانکاری، سماج کی جانکاری نہیں ہوگی کسی بھی انسان کو، اور اس کے اندر دماغ میں کس بات کو وہ صحیح سمجھ کر بیٹھ گیا ہے، کیا وہ اپنے ویکتیگت فائدے کے لیے بول رہا ہے، تو یہ وہ ذمہ دار ہے. اس کے لیے اسلام ذمہ دار نہیں ہے. اسلام تو پوری انسانیت کے فائدے کی بات کہتا ہے. تو اسلام نہیں کہتا ہندوؤں کو نشٹ کر دو، اسلام نہیں کہتا کافروں کو مار ڈالو، اسلام نہیں کہتا کافروں سے دوستی مت رکھو. دیکھیے یہ مولوی صاحب یہی نہیں جان رہے کہ اسلام کہتا کیا ہے. جو اسلام کہتا ہے وہ سماج کا ہر امن پسند اور اچھا اور ایک سویلائزڈ پرسن وہ چاہتا ہے، اور جو اسلام نہیں چاہتا، جن چیزوں کی رکاوٹ اسلام میں ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، وہ سماج میں بھی انہیں کہیں پسند نہیں کیا جاتا ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں. ظلم، ناانصافی، حق تلفی کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے سماج میں. اب اگر کوئی ظالم بن رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، کسی کی حق تلفی کر رہا ہے، تو اس بات کو
मैं नहीं समझ रहा कि समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को जो है इस तरह से डिवीजन करके बांटा जाएगा। और हिंदू, मेरी समझ में तो है नहीं कि हिंदू जुल्म कर रहे हैं या नाइंसाफी कर रहे हैं। वो तो एक समाज में रहने वाले लोग अगर वो हट धर्मी पर आ जाते हैं। ठीक है, नहीं इस्लाम नहीं कहता है, तो इस्लाम ये भी नहीं कहता है बुतों को तोड़ दो, और अगर इस्लाम ये भी नहीं कहता है गैर मुस्लिमों के बुतों को तोड़ दो। देखिए, इस्लाम ये वेदों में भी है ऐसा, जो वेद को छोड़ दीजिए, उसकी जानकारी में हिंदू धर्म से लूंगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस्लाम के मुताबिक हिंदुओं के लिए क्या कहा गया है, सिखों के लिए क्या कहा गया है, जैनियों के लिए क्या कहा गया है, दूसरे मजहब के लोगों के लिए इस्लाम क्या सीख देता है एक मुसलमान को, कि उनका आदर करो, सत्कार करो, उनसे दोस्ती रखो, उनके दुख सुख में शामिल हो, उनके त्योहारों में शामिल हो, उनके धर्म का सम्मान करो, या उन्हें अल्लाह का दुश्मन बताता है इस्लाम, जैसा कि मौलाना साहब कह रहे हैं? बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। इस्लाम दुश्मनी करना नहीं बताता है, बल्कि अमन और सलामती की बात कहता है और दूसरों के फायदे के बारे में आयत हदीस कुछ आप कोट कर सकते हैं इसके लिए? जो सबसे बड़ा रहबर, कोई रेफरेंस कोट कर सकते हैं आप, ताकि लोगों को जानकारी मिले कि ऐसे मौलाना जो भड़का रहे हैं उनको माकूल जवाब दे सकें? जी मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इंसान के, देखिए इस्लाम के लोगों के, मुसलमानों पे जो ईश्वर की तरफ से अल्लाह ने कुरान में संदेश दिया है, उसमें बताया है, हुक्म दिया है कि आप, उसकी आयत में आपको पढ़ के बता रहा हूँ, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। इस आयत में ये बताया गया है, ये हुक्म दिया गया है मुखातिब होके मुसलमानों से कि आप निकलिए, लोगों के फायदे के लिए, अच्छाई फैलाने के लिए निकलिए, और कहीं बुराई हो रही है तो उसे रोकिए, तो अच्छाई और फायदा पहुंचाइए, आप नाफे बन के रहिए, इंसानियत का फायदा करिए, नुकसान मत करिए। तो इस्लाम में कहीं भी ऐसी बात नहीं है, बल्कि दूसरों के फायदे के लिए है, पूरी इंसानियत का फायदा है। और हमारे जो पैगंबर हैं वो पूरी, जी चलिए सचवाला साहब, आपके लोगों के लिए है, दूसरे लोगों के लिए, कौन से दूसरे लोग, जो भी कौन लोग तो आप भी हैं, मैं भी हूं, सब लोग हैं, कौन लोग? भाई जो भी सामने वाला है वो फायदा पहुंचाना है, ठीक है, जो भी सामने वाला है वो उसका फायदा करना। हुसैन साहब कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मौलाना साहब गलत बयानी कर रहे हैं, जो भी आसपास में दूसरे धर्म के लोग अल्लाह के दुश्मन नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कुरान हदीस में कि दूसरे धर्म के लोग अल्लाह के दुश्मन है, उन्हें तुम अपना दुश्मन मानो, उनको नष्ट करना तुम्हारा फर्ज है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कुरान हदीस में। मौलाना साहब जो कनाडा के हैं वो झूठ फैला रहे हैं। मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए हुसैन साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं इनकी इज्जत करूंगा, मगर मसला यह है कि इनको कुरान की जो है मालूमात नहीं है, इनको कुरान के बयानात का जो है पता नहीं है। कुरान 1 नहीं 2 नहीं 20 जगहों पर वही कह रहा है जो कनाडा के इमाम साहब कह रहे हैं। कनाडा के इमाम साहब जो कुछ कह रहे हैं एग्जैक्टली यही बातें कुरान करता है। देखिए सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 में यह कहा गया, ला यत्तखिज़िल मुअमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाह। यानी कोई भी मोमिन, कोई भी मुसलमान किसी काफिर से कोई दोस्ती तक न रखे, कोई भी मुसलमान किसी काफिर से दोस्ती भी नहीं रख सकता। और तो और सूरह आले इमरान की, सूरह अंफाल की आयत नंबर 60 में ये इतनी क्लैरिटी के साथ वही बात कही जा रही है, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। यानी कुरान बिल्कुल क्लैरिटी, बिल्कुल जो है सफाई के साथ बयान कर रहा है कि जो काफिर हैं वो अल्लाह के दुश्मन हैं, वो मुसलमानों के भी दुश्मन हैं। अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, जो है काफिर, जो काफिर होते हैं वो अल्लाह के भी दुश्मन हैं और मुसलमानों और मोमिनों के भी दुश्मन हैं। ये बातें कुरान रिपीटेडली कई जगहों पर बिल्कुल जो है सफाई के साथ पेश करता है और बताता है कि जो काफिर हैं वो अल्लाह के दुश्मन हैं और मुसलमानों के भी दुश्मन हैं। तो जो कनाडा के इमाम साहब जो कुछ कह रहे हैं वो एग्जैक्टली वही बात है जो कुरान में है, और मैं कुरान की आयतें पेश कर रहा हूँ। हमारे हुसैन साहब इन्होंने जो आयत पेश की, ये असल में इसका वो मतलब है ही नहीं जो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, इस आयत का हमारे हुसैन साहब बताइए कि आखिर जो है इस नफ्स मौजू से क्या लेना देना है। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आपने जो आयत पेश की उसका इस मौजू से क्या ताल्लुक है, बताइए क्या ताल्लुक है। आपने एक बिल्कुल गैर मुताल्लिका आयत पेश कर दी जिसका जो है जो अब टॉपिक है इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात यह है, देखिए आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं कि जो है इस्लाम वो नहीं है जो आप बताना चाह रहे हैं, भाई इस्लाम वो है जो कुरान में है।
اسلام وہ ہے جو آتھینٹک حدیث میں ہے. میں بات کرتا ہوں قرآن کی آیتیں پیش کر کر. آپ کے پاس قرآن کی آیت میں جو ہے ایسا کسی ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ جو ہے کافروں کے ساتھ محبت کرو, کافروں کے ساتھ تعلق رکھو, کافروں کے ساتھ دوستی کرو. کوئی ایک بھی آیت قرآن میں ایسی نہیں ہے, کوئی ایک بھی آیت قرآن میں ایسی نہیں ہے. بلکہ قرآن یہ کہتا ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یعنی اے مومنوں, اے مسلمانوں, کافروں سے بھی دوستی نہ رکھو اور یہودیوں سے اور جو ہے نصرانیوں سے اور جو ہے اور جتنے عیسائی ہیں ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو. قرآن بار بار کہہ رہا ہے, بار بار یہ جو ہے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ تم مومن صرف ایک مومن ہی کا بھائی ہے, مومن کسی نان مومن کا یعنی مسلمان کسی غیر مسلم کا بھائی نہیں ہو سکتا. انما المؤمنون اخوہ. قرآن یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جو مومن ہیں وہی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں, اور جو مومن نہیں ہے, جو مسلمان نہیں ہے, وہ جو ہے مسلمان کے بھائی یا مسلمان کے دوست بھی نہیں ہو سکتے. اور تو اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تمہارا سگا بھائی, تمہارا سگا باپ, تمہارا سگا بیٹا بھی اگر جو ہے اسلام کو نہیں مانتا, وہ کفر کو ایمان کے اوپر رکھتا ہے, تو اس کے ساتھ بھی تعلق نہیں رکھنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. دیکھیے قرآن کی نظر میں ظالم کون ہے؟ قرآن کی نظر میں ظالم کافر ہیں. جو کافر ہیں وہی قرآن کی نظر میں جو ہے وہی قرآن کی نظر میں ظالم ہیں. والکافرون هم الظالمون کہتا ہے قرآن. قرآن بالکل کلیئر کٹ بات کرتا ہے کہ جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں, جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں. تو اس اعتبار سے کینیڈا کے امام صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو قرآن میں آئی ہے, وہی بات ہے. ٹھیک ہے حسین صاحب, سچوالا صاحب تو قرآن حدیث کے مطابق کہہ رہے ہیں, مولانا صاحب نے کہا وہ بالکل صحیح ہے, یہی سکھاتا ہے قرآن اور حدیث. اصل میں دیکھیے میم, بات یہ ہے جب کسی چیز کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے اور اسے کاٹ پھاٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے تو اس میں جو اپنے پسند کی ہم کیا پیش کرنا چاہ رہے ہیں بات, صرف اتنی چیز ہم پیش کریں گے, اور جس بات سے ہمیں گمراہ نہیں کرنا ہے تو اس بات کو پیش نہیں کریں گے. یہ صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ کافر کہا کس کے لیے ہیں. کافر اللہ نے جو اس میں کفر کا استعمال کیا ہے, کن لوگوں کے کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے, ذرا اس آیت کو بھی پڑھ کے بتا دیتے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ بات کس کے لیے کہی جا رہی ہے اور کافر کا میننگ کیا ہے؟ تو اللہ کہہ کسے رہا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی سسٹم ہوتا ہے, کوئی بھی دیش ہوتا ہے, اس کے چلنے کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, اور اس کانسٹیٹیوشن کے خلاف جا کر کے اگر اس میں رہنے والے سٹیزن اپنی من مرضی سے یا ہٹ دھرمی سے کچھ کام کرتے ہیں تو وہ خلاف ورزی ہوئی اس کانسٹیٹیوشن کی. اس کی اگر اس دیش کا جو ذمہ داری ہے یعنی کہ جو سسٹم کے اوپر بیٹھے ہوئے ادھیکاری ہیں, نہیں میں دیکھیے قانون اپنا کام کرتا ہے حسین صاحب, قانون سے ہی دیش چلتا ہے, یہ بات ہمیں پتا ہے. میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اسلام کی آیتوں کے حساب سے کئی مولانا جو ہیں لوگوں کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں اور کئی بار اسلام کو غلط چھوی پیش کرنے کا کام کرتے ہیں. کافر کا جو استعمال کیا نا, کافر کا میننگ میڈم انہوں نے کافر کا میننگ نہیں بتایا. کافر اصل میں کہا کس کے لیے گیا ہے, یہ اس کا سچوالا صاحب آپ توڑ مروڑ کر, حسین صاحب آپ کے آروپ لگا رہے ہیں, آپ توڑ مروڑ کر آیتیں پیش کر رہے ہیں اپنے حساب سے, کیونکہ آپ نے اسلام چھوڑ دیا ہے اس لیے آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. سن لیجیے ہمارے حسین صاحب, سن لیجیے حسین صاحب, سن لیجیے برائے مہربانی. اللہ نے جو اصول دیے چلنے کے لیے, لوگوں کے فائدے کے لیے جو بنائے, اگر ہٹ دھرمی سے ہم ان اصولوں کو توڑیں گے, ہم اپنی ہٹ دھرمی سے اپنا کر کے اگر کسی کا ماریں گے, آتنکواد پھیلائیں گے, کریں گے, حق کریں گے, تو کیا ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ راضی ہوگا؟ اسی طریقے سے دیش کا کوئی بھی بڑا آفیسر یا دیش کی کوئی بھی, ارے بھائی سنیے حسین صاحب, دیش قانون سے چلے گا, سنویدھان سے چلے گا. میں اسلام کی بات کر رہی ہوں, میرے شو کا نام کیا کہتا ہے سنویدھان نہیں, کیا کہتا ہے اسلام ہے. تو آپ صرف اور صرف اسلام کی, قرآن کی حدیث اور آیتیں کیا کہتی ہیں وہ بتائیے. یہاں پر سچوالا صاحب آپ پہ آروپ لگا رہے ہیں حسین صاحب, کیونکہ آپ نے اسلام چھوڑ دیا, آپ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے توڑ مڑوڑ کر آیتیں پیش کر رہے ہیں اور آپ کافر کا غلط مطلب دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. جی دیکھیے میں دنیا کے سامنے یہ قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے, والکافرون هم الظالمون. جو ظالم ہیں, جو کافر ہیں اصل میں وہی ظالم ہیں. والکافرون هم الظالمون کہہ رہا ہے قرآن, اتنا کلیئر کٹ بیان دے رہا ہے کہ جو کافر ہیں اصل میں وہی ظالم ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں کافر ہیں, ہم تو اس شخص کو کافر کہہ رہے ہیں جو شخص ہٹ دھرمی پہ ہے اور جو ظلم کر رہا ہے اور جو قتل کر رہا ہے, جو قتل کر رہا ہے,
वो मौलाना गलत है। नाराज मत होइए, मैं जो कह रहा हूँ जरा सुन लीजिए, 1 मिनट धीरज रखिए। बिल्कुल नाराज please। नहीं हो रहे, आप बात सही बता आप दीजिए, जरा आप सुन तो बीच लीजिए। में से काटिए। मैं कुरान की बातें पेश कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए। आप 1 मिनट जरा धीरज से रहिए। देखिए, कुरान के मुताबिक जो अल्लाह पर, उसके रसूल पर, आप जो उसकी कह रहे हो, किताब पर, मैं भी कह रहा हूं, भाई सुन तो साहब, लीजिए भाई, आप सुन तो लीजिए। कुरान के मुताबिक जो अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसकी किताब पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाने वाले को मोमिन कहा जाता है। और कुरान के मुताबिक जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर, उसकी जो है उसकी किताब पर और आखिरत पर ईमान नहीं लाता, वो काफिर कहलाता है। कुफ्र और ईमान और काफिर और मोमिन एक दूसरे की जिद है, एक दूसरे के कंट्रास्ट में आते हैं। जो कोई जो है अल्लाह पर और रसूल पर और किताब पर और आखिरत पर ईमान रखता है, उसको मोमिन कहा जाता है। और जो मोमिन नहीं है, यानी मतलब ये जो है जिसको इन बातों पर ईमान नहीं रखना है, वो काफिर कहलाता है। और जाहिर बात है, काफिर ही को कुरान जालिम कह रहा है। काफिर को कुरान जालिम कहता है। कुरान की नजर में जालिम कौन है? जो काफिर हैं वही जालिम हैं। वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, कुरान इतना क्लियर कट स्टेटमेंट दे रहा है। और फिर शिर्क को इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम कह रहा है सूरह लुक़मान में। देखिए, कुरान कुफ्र और शिर्क के मामले में इतना क्लियर है। और मुझे बड़ी हैरत होती है कि इतनी क्लियर जो है मतलब इंफॉर्मेशन के बावजूद आप लोगों को ईमान और कुफ्र के हवाले से किस तरीके से जो है आप उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं, कितना आप जो है उनके सामने गलत बयानी करते हैं मौलाना। हालांकि कुरान कुफ्र और शिर्क के मामले को लेकर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर बयान कर रहा है। शिर्क को जुल्म अजीम कह रहा है और जो काफिर हैं उनको जालिम बता रहा है कुरान। इसके बावजूद आप पता नहीं जो है कहां किस दुनिया में है, किस दुनिया में है। मोमिनों को जो है ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुम काफिरों के साथ दोस्ती तक न रखो। मोमिनों को ये हुक्म दिया जा रहा है और कि जो है तुम यहूद और नसारा जो यहूदी हैं और जो ईसाई हैं उनके साथ दोस्ती न रखो, उनके साथ कोई ताल्लुक न रखो। ये बार बार कुरान जो है इसको रिपीट कर रहा है। मुझे ये बताइए कोई एक आयत पेश करें जिसमें यहूद और नसारा या मुशरिकों या हिंदुओं या काफिरों से दोस्ती की बात की गई है। एक आयत बताओ, एक आयत पूरे कुरान में ये बताओ कि जिसमें काफिरों के साथ प्यार की बात की गई है, काफिरों के साथ मोहब्बत की बात की गई है, काफिरों के साथ दोस्ती की बात की गई है, काफिरों के साथ ताल्लुक का जो है हुक्म दिया गया है। कोई एक आयत बताइए, एक आयत। पूरे का पूरा कुरान खाली पड़ा है। कुरान काफिरों के ताल्लुक से तो अपनी इंतहाई जो है यानी शिद्दत और जो है अपनी सख्ती और अपनी कट्टरता दिखा रहा है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम कह रहा है, वल यजिदू फीकुम ग़िल्ज़ा कह रहा है। मेरे कुरान मोमिनों को यह हुक्म दे रहा है कि अपने पड़ोसी काफिरों के साथ भी तुमको जो है क्या करना है, लड़ाई लड़ना है। और मोमिनों को चाहिए कि अपनी कट्टरता दिखाओ। वल यजिदू फीकुम ग़िल्ज़ा, काफिर पाएं, काफिर ये देखें कि मोमिनों के अंदर कट्टरता है। कुरान एक ने 20 आयतों में अपनी बात को इतनी क्लैरिटी के साथ पेश कर रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये कनाडा के इमाम साहब जो कुछ कह रहे हैं एग्जैक्टली वही बात है जो कुरान में आई है। तो लेकिन काफिर कौन है? ये कह रहे हैं कि आप काफिर की गलत डेफिनेशन बता रहे हैं सचवाला साहब। काफिर का मतलब ये नहीं कि हिंदू काफिर है या फिर जैन काफिर है या सिख काफिर है। जी मैम, बिल्कुल जी, ठीक है, मैं आपको कुरान ही के मुताबिक बयान कर रहा हूं। ठीक है, सुन लीजिए हुसैन साहब, मैंने आपका सवाल उठाया। यहाँ पर मेरा मकसद है शो के जरिए कोई भी गलत बात या इस्लाम को किसी भी तरह से उसकी गलत छवि पेश करना नहीं है, इसलिए मैं हर माकूल सवाल उठाऊंगी। सचवाला साहब ये कह रहे हैं कि आप काफिर की गलत भाषा बता रहे हैं। काफिर तो गलत आदमी है और गलत आदमी का के साथ गलत करो ये तो हर धर्म कहता होगा। नहीं, देखिए कुरान इसको क्लियर कर रहा है। मोमिन किसे कहते हैं, काफिर किसे कहते हैं। मोमिन और काफिर एक दूसरे के कंट्रास्ट में आए हैं। जो मोमिन है, मोमिन क्या है? अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसकी किताब पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाने वाले को मोमिन कहते हैं। और जो इन पर ईमान नहीं लाता, जो इन बातों का इनकार करता है, वो काफिर कहलाता है। और काफिर ही तो कुरान जालिम कह रहा है। काफिर को कुरान जालिम कह रहा है, एक नहीं कई जगहों पर। वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून कह रहा है इतनी क्लैरिटी के साथ। जो काफिर हैं असल में वही जालिम है कुरान की नजर में। कुरान की नजर में जालिम कौन है? ये जो है जो हत्यारा है, जो किसी को जो है किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी को तकलीफ पहुंचाता है, वो नहीं है, वो जालिम नहीं है कुरान की नजर में। कुरान की नजर में जालिम कौन है? जो काफिर है। ठीक है हुसैन साहब, कुफ्र करते हैं वो जालिम है। जी, इनके हिसाब से तो हिंदू सिख ईसाई यानी कि जो भी गैर मुसलमान है वो काफिर है। जो कोई अल्लाह का, रसूल का, किताब का इनकार करे वो काफिर है। क्या आप इनकार करती हैं या इकरार करती हैं आप कुरान का, अल्लाह का, रसूल का? अगर आप नहीं, अगर कोई अल्लाह का सम्मान करता है तो उतना काफी नहीं है। मुझे किताब में यकीन रखना भी जरूरी है। जी जाहिर बात है। नहीं भाई, मैं अल्लाह का सम्मान करती हूँ लेकिन मेरे पास अपनी धर्म की किताब है। की कोई वैल्यू नहीं है कुरान की नजर में, कोई वैल्यू नहीं है। आपके जो है समान की कुरान की नजर में कोई वैल्यू नहीं है। आप पर ईमान लाना जरूरी है। अगर आप ईमान लाएंगी तो मोमिन कहलाएंगी, अगर ईमान नहीं लाएंगे तो काफिर कहलाएंगी। हुसैन साहब, काफिर और मोमिन एक दूसरे की जिद है। हुसैन साहब, इनकी परिभाषा के हिसाब से तो हर इंसान जो मुसलमान नहीं है, जो इस्लाम जिसने कबूल नहीं किया है, वो काफिर है। जो कोई इस्लाम का इनकार करे वो काफिर है। देखिए कुरान तो ईश्वर की अंतिम किताब है जो
पूरी इंसानियत के फायदे के लिए, इसे हुदल नास बताया गया है कि ये पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है और चलने का एक तरीका है, और इसमें रूल्स बनाए गए हैं जो इंसानों की नुकसान के लिए हैं उनसे रोका गया है, जो इंसानों की इंसानियत के फायदे के लिए हैं उस पर चलने की अल्लाह ने हुक्म दिया गया है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है जहां भी काफिर लफ्ज का आया है तो उससे ना तो हिंदू का, सिख का, ईसाई का, उससे कहीं कोई जिक्र इस तरह का नहीं है। ये जो भी बात बोल रहे हैं ये अपनी तरफ से एक मैनिपुलेट करके और आगे पीछे करके बातों को उस समाज। चलिए ठीक है, हमारे दर्शकों ने हुसैन साहब आपकी बातें भी सुनी, सचवाला साहब की बातें भी सुनी, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों को कहूंगी कि आप खुद पढ़ें कुरान, हदीस, उनके इंटरप्रिटेशन और तमाम जो स्कॉलर्स हैं उनसे भी बातचीत करें और उसके तो बाद आप भी अपने स्तर पर सच्चाई का पता ज़रूर लगाएं और हो सके तो कुरान ज़रूर पढ़ें। इतना मुश्किल नहीं है, एंड्रॉयड पे एप्लीकेशंस हैं, आप वहाँ पर डाउनलोड कीजिए और कुरान को पढ़िए और काफिर का मतलब भी समझिए कि काफिर कौन होता है। इस पूरे डिस्कशन और डिबेट में एक चीज़ तो समझ में आ गई कि काफिर कौन है। कि सचवाला जी ने तो आयतें भी पेश करी, जो दूसरे मौलाना थे वो आयतें पेश नहीं कर पाए जहाँ पर काफिर की क्लियर कट डेफिनेशन हो। वो ये कहने लगे कि काफिर वो है जो गलत काम करता है। अगर एक हिंदू है जो अपने इष्ट देवों की पूजा करता है, अपने जो उसके डेमी गॉड्स हैं उनकी पूजा करता है, वो हनुमान की पूजा करता है, शिव की पूजा करता है, राम जी की पूजा करता है, तो इस्लाम की नज़र में तो वो क्लियर कट काफिर है। एक हिंदू जो अच्छे काम करता है, दान दक्षिणा करता है, कभी किसी का बुरा नहीं करता, कभी किसी को सताता नहीं है, किसी का दिल नहीं दुखाता है, वो बस अपनी भक्ति में लीन है, भगवान को जिस रूप में उसने देखा है वो अपने उस रूप में भगवान को पूजता है। लेकिन इस्लाम की नज़र में वो काफिर है और काफिर के साथ दोस्ती जो है वो जायज़ नहीं है। ये कुरान में लिखा हुआ है। किसी को डाउट है तो कुरान का जो चैप्टर नंबर 9 है उसका 9-5 पढ़ लो, उसका 9-28 पढ़ लो, 9-5 से लेकर 9-28 तक सारे पढ़ लो, या पूरा 9 चैप्टर पढ़ लो, या पूरी कुरान पढ़ लो। पढ़ना आपको पड़ेगा। जो सचवाला जी ने जो चीज़ें बताई वो कहते हैं कि कुरान कहता है कि काफिर ही जालिम है, काफिर जालिम भी है, और काफिर शब्द जो है ये अपने आप में एक बहुत ही जो घिनौना शब्द है, बहुत ही गंदा शब्द है। मुशरिकीन नजसी ऐसा आता है, तो वो अभी वहाँ पर आता है कि नजस मतलब जिसको कहा जाता है कि काफिर जो है वो सबसे अपवित्र चीज़ है। सबसे अपवित्र चीज़ जो उस दुनिया में है वो काफिर है। और काफिर कौन है वो सचवाला जी ने बताया, जो कुरान पे यकीन नहीं रखता है, जो अल्लाह को खुदा नहीं मानता है, जो रसूल को उसका पैगंबर नहीं मानता है, जो ये सारी चीज़ें नहीं करता है वो सीधा का सीधा क्लियर कट काफिर है। ये डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर आ जाती है। इसको आप कैसे भी कर लो, आगे से पढ़ो, पीछे से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, इस डेफिनेशन को आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक शब्द आता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, जो इस चीज़ को नहीं मानता वो भी काफिर है। काफिर वो नहीं है जो गलत काम करता है, लूट मार करता है, चोरी करता है, लोगों को सताता है, वो काफिर नहीं है। काफिर वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह को नहीं मानता है, जो कुरान को नहीं मानता है कि ये पढ़ने लायक है, जो अपने कुछ आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, वो सारे लोग काफिर हैं। इनका ये मानना है कि कुरान में लिखी हुई चीज़ें ही सच हैं, बाकी जो उसको नहीं मानता है, वो जो अलग चीज़ को फॉलो करता है, वो सब काफिर हैं। साइंटिस्ट जो साइंस की बात करते हैं, जो विज्ञान की बात करते हैं, कुरान को नहीं मानते हैं, लेकिन वो विज्ञान को मानते हैं। जो लोग प्रकृति को मानते हैं, सूरज चांद सितारों को समझते हैं, जो दिखती चीज़ें हैं उनको ही मानते हैं कि ये सच है, ये साइंस सच है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स सच है, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश ही सच है। कुरान की चीज़ों को जो नहीं मानते हैं, जो ये समझते हैं धरती गोल है और सूर्य जो है वो धरती के इर्द गिर्द नहीं बल्कि धरती सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, जो ये लोग मानते हैं कि अर्थ गोल है, जो ये मानते हैं कि सूरज और चांद जो है वो, सूरज जो है वो एक फिक्स है और अर्थ जो है सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, वो लोग भी काफिर हैं। जो ये नहीं मानते हैं कि धरती फ्लैट है, जो ये नहीं मानते हैं कि धरती फ्लैट है, वो लोग भी काफिर है, क्योंकि कुरान में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो ये नहीं मानते हैं कि सूरज जो है वो कीचड़ में छुपता है, जो ये नहीं मानते हैं, जो ये मानते हैं कि सूरज कहीं छिपता नहीं है, अर्थ घूम जाती है, सूरज कीचड़ में नहीं छिपता है। अगर आपने ऐसा नहीं माना तो आप काफिर हो। आपको ये मानना पड़ेगा कि सूरज जो है वो कीचड़ में छुपता है।
जब आप शूटिंग स्टार्स देखते हो, आसमान में टूटते हुए तारे देखते हो, तो आपको ये मानना पड़ेगा वो जो टूटते हुए तारे हैं वो शैतान के ऊपर अल्लाह ने उसको तीर की तरह मारा है, वो अल्लाह ने शैतान को मारा है, वहाँ से पत्थर मारे हैं, तो इसलिए वो शूटिंग स्टार बनते हैं। जो लोग ये नहीं मानते हैं वो सारे के सारे लोग काफिर हैं। जो अल्लाह को खुदा नहीं मानते हैं वो लोग सारे के सारे काफिर हैं। जो अवतारवाद में मानते हैं, जो ये मानते हैं कि भगवान कण कण में है, वो सारे लोग काफिर हैं। जो ये मानते हैं कि भगवान जो है वो पल पल में है, वो सारे लोग काफिर हैं। और काफिर निजस है, सबसे पवित्र चीज़ है। जो ये मानते हैं कि ये जो प्रकृति है, ये जो कुदरत है वो अपना काम करती है, ये जो कुदरत है वो अपने तरीके से चलती है, जो ये मानते हैं वो सारे लोग काफिर हैं। उस डेफिनेशन के हिसाब से चला जाए तो एक शख्स है जो मजहब को नहीं मानता है, जो मजहबों के ऊपर में नहीं मानता है, लेकिन वो इंसानियत को मानता है, वो मनुष्यत्व को मानता है, वो सब लोगों का भला करना चाहता है, पर वो अल्लाह को खुदा नहीं मानता है। या चलो अल्लाह को खुदा मान भी लेता होगा, लेकिन वो ना तो कुरान पे अपना यकीन रखता है, ना ही वो रसूल बाद में कोई यकीन रखता है, वो भी बंदा काफिर है। आप सोचिए, इतनी डिटेल में सच वाला जी ने बताया, लेकिन फिर भी लोगों को डाउट है, तो वो लोग खुद जाके पढ़ सकते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे कि हम जिस देश में रहते हैं हमें उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। इसके पीछे भी एक बहुत ही डिटेल, बहुत ही सूक्ष्म सी चीज़ है, क्योंकि जब ये लोग कम होते हैं तो इनको बोला गया है कि आपको उस देश के कानून को मानना है। अगर आप तादाद में कम हो तो आपको उस देश के कानून को मानना है, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जिस दिन इनकी तादाद बढ़ गई उस दिन तो ये जो है इनकी कुरान ही इनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये बात जिसको डाउट है ना, वो वहाँ देख सकता है। जहाँ जहाँ कम थे, उसके बाद जैसे तादाद बढ़ी तो उसके बाद संविधान, कानून सब जो है वो कुरान ही बन जाता है। तो आपको इस चीज़ को बड़ी डिटेल में समझना पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो था। अगर आपको सचवाला जी के चैनल से जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर मैं लेके आता रहता हूँ। बाकी सोचना और समझना आपको खुद है। आप खुद जाइए, खुद सर्च कीजिए, खुद पढ़िए, तभी आपको सच्चाई का पता लगेगा। इसके साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।